हेलो क्लास 10th। आई होप आज का एग्जाम आप सबका अच्छा गया होगा। आज सोशल साइंस का टेस्ट था, पेपर था टर्म 1, और परसों साइंस का है, तो इसलिए अभी हम आंसर की डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको अभी एग्जाम की तैयारी करनी है नेक्स्ट साइंस पेपर की। तो लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। द क्वेश्चन पेपर, एक बच्चे का क्वेश्चन पेपर मिला है मुझे और उसी पे मैंने आंसर की भी मेंशन की है। तो जस्ट लेट अस चेक इट आउट। सेक्शन ए था, 24 क्वेश्चंस थे उसमें और 20 करने थे आपको। मैं 24 डिस्कस करूंगा। फास्ट फास्ट आंसर कीज को डिस्कस कर लेते हैं और आप बाद में कंपेयर कर लीजिएगा और मुझे मार्क्स बता दीजिएगा कितने हैं आप सबके। Industrialization began in which one of the following European countries in the second half of the 18th century? Which was a very easy question. इसका आंसर है D, England. Which type of the governments were mainly driven in Europe after the defeat of Napoleon in 1815? Multiple times ये question मैंने भी टेस्ट में डाला है. That is conservative. A option. Third का which one of the following group of the countries collectively defeated Napoleon 1815 in 1815? ये आप सबका सही होगा. I know that is Britain, Russia, Persia and Austria. In which of one of the following countries did the first liberalist nationalist upheaval take place in July 1830? That is A, France. Who among the following remarked, when France sneezes, the rest of the Europe catches cold? Metternich, which is again a very easy question. Who among the following was the architect for the unification of Germany? Otto von Bismarck. देखिए अभी तक जो है easy questions हैं, right? Who among the following had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic during 1830s? That is Giuseppe Mazzini. इस बच्चे ने ये क्वेश्चन नहीं किया है. Which of the following state is overgrazing the main reason for land degradation? That is Maharashtra. हमने ये पढ़ा भी था. Identify the soil which ranges from red to brown in color and saline in nature. Arid soil. बच्चे इन soil में कई बार गलती कर लेते हैं. Next question भी मुझे लगता है कि बच्चों ने गलती किया होगा जैसे इसने किया. Which one of the following forces leads to maximum soil erosion in plains? That is running water. Wind is not a wrong answer. Wind भी करता है लेकिन यहाँ लिखा maximum soil erosion, so that is running water. Deforestation due to mining has caused severe land degradation in which one of the following states? That is Odisha, Tamil Nadu, Kerala and Gujarat. That is Odisha. Answer is Odisha. Who among the following was proclaimed king of United Italy in 1861? ये तो ऑप्शन के बिना भी आप सही आंसर देते. That is Victor Emmanuel II. Which one of the following subjects is included in the union list? Communication is the right answer. Trade, commerce, irrigation is not the right answer. Which one of the following elements is included in the Belgium model? ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस को आपने ध्यान से पढ़ना होता है जब लिखा होता है not included. इसका सही आंसर है there is a community government which has a special powers of administration. Community government को special powers of administration नहीं दिए गए थे. Although community government was there, but they were not having the special powers of administration. Which one of the following country is the example of holding together federation? बहुत easy answer, India. इंडिया से बड़ी एग्जाम्पल क्या हो सकती है बताइए आप. Which one of the following ethnic communities is in majority in श्रीलंका? That is सिन्हाला. बहुत इजी क्वेश्चन, ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है. देखिए आप इनको देख लीजिएगा जो रेड से मैंने मार्क किया, ना कि जिस पे टिक किया है. Which one of the following subjects is included in the state list? इस बच्चे ने नहीं किया. That is banking, business, currency and communication. Business उस स्टेट का. Activities that help in the development of primary and secondary sectors come under which one of the following sectors? That is tertiary. क्योंकि tertiary पे काफी चीजें डिपेंड होती है, right? Identify the correct feature of unitary form of government from the following option. The answer is the subunits are subordinate to the central government. I'm just coming to the answers directly just because आपको अगले एग्जाम की भी तैयारी करनी है. At the initial stages of development, which one of the following sector was the most important of primary activity? देखिए ये मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रहा था. प्राइमरी एक्टिविटी इज द राइट आंसर. ओके, क्योंकि प्राइमरी पे ही जब हम क्या कहीं के भी अगर आप देखोगे तो जो प्राइमरी है इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर वाज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? तो प्राइमरी इज द राइट आंसर. Activities in which natural products are changed into the other forms comes under which one of the following sectors? That is secondary, not primary. The products received by exploiting natural resources under which one of the following sector? Answer is primary again. Which one of the following factors is mainly responsible for declining water level in India? That is overutilization. इस बच्चे ने नहीं किया लेकिन मुझे लगता है बच्चों ने ये भी गलत किया होगा.
कहीं होने, क्योंकि ये सब आंसर इसके सही लग रहे हैं, लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन इज अ मेजर आंसर, क्योंकि बाकी सब से हमें फायदा भी हो रहा है, इरिगेशन हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, अर्बनाइजेशन हो, लेकिन ओवर यूटिलाइजेशन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Which one of the following subjects is included in the current concurrent list? That is marriage, of course, again a very easy answer. No, next section B. 22 क्वेश्चन थे, सिर्फ आपको 18 करने थे, और ये assertion and reason है. जैसा आपने देखा कि assertion and reason के ज्यादा क्वेश्चंस डाले गए हैं ना, तो assertion and reason पे सीधा हम बात करें 25th क्वेश्चन की. Assertion है, after Russian occupation in Poland, the Russian language was imposed on its people. बहुत सही, बिल्कुल सही है. The use of Polish soon came to be a symbol of struggle against Russian dominance. सही है, लेकिन explanation नहीं है, तो इसलिए इसका B आंसर है. अब मैं सीधे आ जाता हूँ ऑप्शंस पे. 26 जो क्वेश्चन हमें देखने को मिला है, दैट आंसर इज नॉट सी, जो बच्चे ने जैसे मार्क किया, दैट इज डी, एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क. सेकंड, यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड बीन प्रोक्लेम्ड. फोर्थ, फ्रीडम. एक और क्वेश्चन जो जिसका सही आंसर है डी, दैट एसोसिएशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू. दैट रीजन क्या सही है? कॉन्ट्रैक्टर्स हैड ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट. ऑन which one of the following modern this, इसका आंसर था लीगल सिस्टम और डेमोग्राफी. ओके, सी आंसर इज द करेक्ट वन. नॉट सी, सॉरी, सी के साथ नहीं, नॉट डेमोग्राफी वाज नॉट देयर. करेंसी, बैंकिंग, लीगल सिस्टम. यस, करेंसी, बैंकिंग एंड लीगल सिस्टम वाज देयर, यानी कि इसका आंसर आएगा डी. यस, डी. Which one of the following Italian states was ruled by the Italian princely house? Answer is very easy, Sardinia, Piedmont. Question number 30th. Identify the characteristics of Quebec among the following. Choose the correct option. Option इसमें चुना गया, इसमें सही आंसर है जो इस बच्चे ने नहीं किया है, that is option B, 1, 2 and 3. He was an Italian statesman. He spoke French much better than Italian. He was a tactful diplomat. तभी इनको चीफ मिनिस्टर भी बनाया था, राइट ना. 31st क्वेश्चन, आंसर सही है इसका डी, assertion is false but reason is true. assertion false है, reason पढ़ लेते हैं. ethnic groups of Britain extended its influence. Okay, which among the following is not a problem of resource development and equitable distribution of resources? Which one of the following human activities has contributed most in land degradation? That is deforestation. ठीक है, गलत नहीं करना है, ये छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस है, इनको गलत नहीं करना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर इज ए, यानी कि बोथ रीजन एंड असर्शंस आर ट्रू, और एक्सप्लेनेशन भी सही है. इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सेल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स. अच्छा रहेगा उनके लिए, बिकॉज दिस विल इंक्रीज देयर इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 35, द करेक्ट आंसर इज डी, assertion गलत है, रीजन सही है. डोमिनेंस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द कंट्री. क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं. टू स्टेटमेंट्स, ऑफ कोर्स assertion एंड रीजन. अगेन assertion और रीजन में इसमें दोनों ही सही है. पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स, है ना. बहुत इजी. अगेन ये भी इजी था. चूज अ करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग, दैट द आंसर इज डी, अर्जेंटीना इज अ फेडरल कंट्री. हाँ, ये हमने एमसीक्यू में भी डाला था. टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो. ओके, अगेन assertion एंड रीजन. इसका आंसर है assertion और रीजन सही है, बट रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, रीजन क्या है? 1956 एक्ट रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. द डिस्ट्रेस बिटवीन, assertion है, द डिस्ट्रेस बिटवीन सिन्हालास एंड तमिल कम्युनिटीज टर्न इनटू वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका. अगर रीजन assertion की जगह होता और assertion रीजन की जगह होता तो जाके ये सही होता, लेकिन इन्होंने थोड़ा उल्टा किया है. द आंसर इज बी, assertion रीजन सही है, लेकिन रीजन इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है. हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ शेयरिंग, ये बहुत बारी पूछा गया है. हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग का क्या होता है? डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. ए आंसर. 40th का ए और सी दोनों सही है, क्योंकि दोनों सेम ही है. तो ए लगाए या सी लगाए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी. आपको कॉलम 2 दिया गया है इसमें, तो आंसर आइदर ए और सी, एक ही बात है. Which of the following countries is an example of coming together federation? That is United States of America. हाँ, एक और बात, अगर क्वेश्चन 40th में किसी ने
सी या डी लगा, सॉरी बी या डी लगाया होगा तो पॉसिबिलिटीज के उसको मार्क्स दे दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। Which one of the following countries is an example of coming together federation? America. Which is not an integral part of the government, that is office of the prime minister? Question number 43rd. Question number 43rd का assertion सही है but reason गलत है। assertion सही है but reason गलत है। Okay, that is Kerala has low infant mortality rate, but reason जो दिया गया था वो गलत है। Kerala has adequate provisions of basic health and education facilities. चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ओके, ये क्वेश्चन भी हमने कई बारी किया है, इसका आंसर तो आपको जल्दी से, कि बच्चे ने गलत किया, इतना गलत नहीं होना चाहिए था, बट चलो कर दिया तो कोई बात नहीं। अब क्या किया जा सकता है, आगे वाले एग्जाम्स का ध्यान रखेंगे। इसका आंसर है 12,000। जल्दी से किया जाए। 10,000 बताया गया पर कैपिटा इनकम, हम लगा लेते हैं 4 बंदों की 40,000, इसको ऐड कर लेते हैं 6 8 14 हो गए, 6 6 12 13 14 14 14 28, 40 में से 28 गए तो पीछे बचा 12,000। Which one of the following sector shows the highest share in gross domestic product? Answer is tertiary sector. Tertiary sector. Okay, which one of the following sector shows the highest share in employment in 2017 and 18? That is primary sector. अब नए क्वेश्चंस पे आते हैं, सेक्शन सी पे आते हैं जो बहुत इजी हैं, इसलिए हम सीधे ऑप्शन पे आते हैं। 47 का ए है, 48 का बी ए है, 48 का ए है। ओके, 49th का सी, 50th का डी, 51st का बी, 52nd का ए। और दूसरा भी बड़ा इजी था, 53rd का ये दूसरा जो सेक्शन दिया गया केस बी जो है वो दिया गया है केस बेस्ड स्टडी में। 53rd का ए, 54th का सी, 55th का बी, 56th का सी, 57th का ए, 58th का डी। और अब आते हैं हम सेक्शन डी पे, 59th और 60th क्वेश्चन। दैट वाज अ मैप वर्क। मैप बहुत इजी था, आउटलाइन करना, पहले से आपका मैप बना था तो आपका आधा काम तो वहीं हो चुका था। हीराकुंड का आपको लोकेशन दिया गया था, हीराकुंड यू नो ओडिशा है, आप लोकेशन भी याद रखते तो इजीली आंसर कर पाते। वेस्ट बंगाल जो मार्क किया है तो आप यहाँ से भी गैस आउट कर सकते थे भाई ओडिशा में कौन सा हीराकुंड। एंड फिफ्थ and which one of the following state is the largest producer of jute? That is West Bengal. Okay, just give me a second. Yes, okay, sorry for that. The ये questions visually impaired candidates के लिए। So यहाँ पे है A is marks the dam, identify Hirakund is the right answer and the answer is largest jute producer state. तो दोनों का एक ही क्वेश्चन है बाय द वे, वेस्ट बंगाल। ओके, सो इस तरीके से आपने सोशल साइंस का जो है आंसर की पता चलता है। जस्ट लेट मी नो हाउ मच यू हैव स्कोर्ड, और अगले एग्जाम के लिए भी अच्छी सी तैयारी करना। ऑल द बेस्ट।